And in today's case, how to give to God? और आज के दिनों में परमेश्वर को कैसे दे? Okay? So, you have to give it to the person who represents God in your life. तो आपको उस व्यक्ति को देना है जो परमेश्वर को दर्शा रहे हैं आपके जीवन में। You understand? क्या आप समझ रहे हो? You should always have somebody who represents God in your life. आपके जीवन में ऐसा एक व्यक्ति होना ही चाहिए जो परमेश्वर को दर्शा रहा है आपके जीवन में, Whom you have to submit. जिसके अधीन आपको होना है। This is very important rule. ये बहुत ही महत्वपूर्ण। Okay? That is why you be very careful. Because in the members of the house of prayer, I represent God. तो जो प्रार्थना के घर के जो लोग हैं उनके लिए मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के राज्य को दर्शा रहा हूँ। Not only that, even God talks inside your life through me. परमेश्वर आपके जीवन में बातें करता है मेरे द्वारा। Okay? Please understand this. इसे समझना है आपको। So whenever you see me तो जब भी आप मुझे देखते हो in your dreams, आपके सपनों में, it is God is telling you something. पिता परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं। Sometimes I come in your dreams. कुछ समय मैं आपके सपनों में आ जाऊंगा, Okay? And say something. और मैं कुछ कहूंगा। It is not me telling you. ये मैं नहीं हूं जो आपको कह रहा हूं, It is God telling you. ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। So be careful about तो that. आपको इसका ध्यान रखना है। Now, I am like you only. अभी मैं भी आपके जैसा ही हूँ। I am not more holy than you. मैं आपसे ज्यादा पवित्र नहीं हूँ, I am like you. मैं आपके जैसा ही हूँ, But God uses me. लेकिन परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता Now है। मैं क्या करूं? That is between me and God. I will deal with him. अभी वो मेरा परमेश्वर के बीच में, मैं उनको संभाल लूंगा। You understand that it's sometimes I feel, Lord, why are you doing like this? क्या आप समझ रहे हो? कभी कभी मैं सोचता I हूँ am परमेश्वर unfit for आप that. ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं But इसके still योग्य God is नहीं so हूँ। loving. See, that's why God's kindness is very high. इसलिए परमेश्वर की जो करुणा है वो बहुत ही बड़ी His है। love is very high. उसका जो प्रेम है वो It बहुत is बड़ा not like है। your love and my वो love. आपके और मेरे प्रेम जैसा नहीं है, He is another level only. वो अलग ही लेवल पे He है। uses us. वो In हमें spite इस्तेमाल of करता our है। weakness, He uses us. हमारी कुछ भी कमजोरियां हैं फिर भी वो हमारा इस्तेमाल करता है। Have you ever seen a dream? Any of you have ever seen a dream where I have come and said something? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा जहां पर मैंने आके हाँ? आपसे कुछ कहा है? Yeah. That is not me. I am not telling you. वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। Okay? That is, please don't think it is me. Every dream has a meaning. हर एक That is सपने God का given. एक अर्थ होता है, वो परमेश्वर देता है। Okay? So please understand that. तो हमें समझना है। And God, sometimes in my dream, I see Pastor Joseph saying something. और कभी कभी मैं अपने सपनों में पासवान जोसेफ को देखता हूँ, वो कुछ कह रहे हैं। Yeah. Sometimes my own dad has come and said certain things. कभी मेरे खुद के ही पिता आते हैं और वो मुझे कुछ कहते हैं सपने में। Okay? That is God telling me. वो परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। One day my dad, in my dream, one day my dad was telling, he was standing in front of my house and he was shouting, Thomas, come fast, we have to go. Come fast, we have to go. तो एक दिन मेरे सपने में मेरे पिता मेरे घर के बाहर खड़े थे और वो कह रहे थे, थॉमस तू बाहर आ, हमें जाना है, तू बाहर आ, हमें जाना है। I was doing something in my house. मैं कुछ I was taking something or searching for something. मैं कुछ कर रहा था अपने घर में, मैं कुछ चीजें ले रहा था, कुछ चीज को ढूंढ रहा था। When I got up, जब मैं उठा, I understood I am delaying God. मैं समझ गया कि मैं परमेश्वर को God wants रोक to रहा go हूं। somewhere परमेश्वर चाहता है कि मैं कहाँ जाऊं and I am delaying Him. और मैं उसे रोक रहा हूँ। You get what I say? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस। There has to be somebody who represents Jesus Christ in your life. ऐसा कोई तो होना चाहिए जो यीशु मसीह को दर्शा रहा है आपके जीवन में। Now you ask, I am not Jesus Christ. देखो अभी आप पूछोगे कि मैं यीशु नहीं हूँ, I represent Jesus Christ. मैं उसे दर्शा। So you have to give your tithes to that person. तो आपको अपना दशमांश उस व्यक्ति को देना है। Okay?
So you can give your tithe in the house of prayer. तो आप दशमांश प्रार्थना के घर में दे सकते हो। Some people have a mistaken opinion. In grace period, there is no tithing. तो कुछ लोग गलत शिक्षा रखते हैं, उनको लगता है कि अनुग्रह के समय में ये दशमांश नहीं देना चाहिए। I don't believe that. मैं उसमें विश्वास नहीं करता। In grace, we have authority over offering, not on tithe. Tithe is never mine. It has to be given to God. That He is the due owner of the tithe. अनुग्रह में मेरा जो अधिकार है वो भेंट पर है, वो दशमांश पर नहीं है। दशमांश परमेश्वर का है और मैं उसे देता हूँ। Okay, that's it. Principle number 3. सिद्धांत नंबर 3, It is the concept of fellowship. ये सहभागी होने का Fellowship. सिद्धांत है। God and man had a very deep fellowship. तो परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप वो बहुत गहरा रिश्ता है। So you can't violate this तो fellowship. आप इसको तोड़ नहीं सकते, इस मिलाप को। This fellowship, if you violate, then it is very difficult for us. अगर इस मिलाप को अगर आप तोड़ते हो तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा Okay, हमारे। Genesis chapter 3, verse 8. उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वचन। Okay, they heard the sound of God, Lord God, walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Okay, so he was coming on this earth and have fellowshipping with his children. तो परमेश्वर धरती पर आ रहे थे और अपने बच्चों से मिल रहे थे। Okay, so this is the fellowship we have. तो यही मिलाप है जो हमारे पास होना चाहिए। This fellowship is the crux which we can never lose. ये मिलाप हमारी बुनियाद है जिसे हमें कभी नहीं खोना है। Okay, so the day you have no fellowship, जिस दिन आपके पास कोई मिलाप नहीं है, the day is you are breaking certain, violating certain principles of your life. उस दिन आप अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों को तोड़ रहे हो। Okay, what is fellowship? How to strengthen this fellowship? अब ये मिलाप क्या है, इससे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? Every day we need to see. I'll tell you one thing. God has given us. Before that, let me clarify this. When God came and met Adam, जब परमेश्वर आए और आदम से मिले, He said, "Where are you, Adam?" उसने कहा कि आदम तू कहाँ है? Now, why God asked like that? अभी परमेश्वर ने ऐसे क्यों पूछा? Why God asked Adam, "Where are you?" परमेश्वर ने ऐसे क्यों पूछा आदम को कि तू कहाँ है? God knew where he was. परमेश्वर को पता है वो कहाँ है। Adam was hiding behind the tree. आदम एक पेड़ के पीछे छिपा था। Now, why God asked like that? अभी परमेश्वर ऐसे क्यों पूछ रहा है? Many people, is it wrong? No. After you know where he is, why should you ask him where he is? अब ये गलत हो सकता है ना, अभी आपको पता है वो कहाँ है तो आप कैसे पूछ सकते हो कि तू कहाँ है? Or God did not know? और परमेश्वर को नहीं पता था। Or God knew? क्या परमेश्वर को पता था? Was he telling a lie? क्या वो झूठ बोल रहा था? See, sometimes when I come to my home, देखो कुछ समय जब मैं घर पर आता हूँ, my son is actually hiding behind the door. मेरा बेटा दरवाजे के पीछे छुपा रहता है। I know he is hiding behind the door. मुझे पता है कि वो दरवाजे के पीछे छिपा है, But when I come, लेकिन जब मैं आता हूँ I ask, मैं पूछता हूँ, "Where is Babu?" बाबू तू कहाँ है? I cannot see Babu. Where is Babu? मैं बाबू को देख नहीं सकता, बाबू कहाँ है? Here Adam, he sinned. He sinned. Adam आदम ने sinned. पाप किया And he's hiding behind a tree. और वो एक पेड़ के पीछे छिपा है। And he has done something. He's so naked. और उसने ऐसे कुछ किया है कि वो अपने आप को नग्न महसूस कर रहा है। He's actually naked and he did something and he's hiding behind, and his wife was hiding behind another tree.
and both were hiding. वो नग्न अवस्था में थे, वो एक पेड़ के पीछे छुपा था, उसकी पत्नी दूसरे वृक्ष के पीछे छुपी थी। So he thought he can hide from God. तो उसे लगा कि वो परमेश्वर से छिप सकता है। So when God is coming, लेकिन जब परमेश्वर आए, God is asking, Adam, where are you? I can't see you. परमेश्वर पूछ रहे कि आदम तू कहाँ है, मैं तुझे देख नहीं सकता। You understand why God said like that? आप समझ रहे हो परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा? God is so kind. परमेश्वर कितने नम्र When हैं। God comes on this earth, He comes down on this earth. जब परमेश्वर इस Come धरती down पर to man's आते हैं, level. तो वो मनुष्य के बराबर में आते हैं, नीचे आते हैं। That is how God is. वैसे परमेश्वर है। Even today, when God comes, He comes down to your level. आज भी जब परमेश्वर आते हैं तो वो हमारे बराबरी पर आते हैं। When I was young, I never understood how God talks to me. जब मैं जवान था, मैं कभी समझ नहीं पाया कि परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रहा है। Everybody says, God talk to me, God talk to me. And I don't know how God talk to me. सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था अरे परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रही है। So I prayed like this. तो मैंने ऐसे प्रार्थना Lord, की, you pray, you talk in such a way that I will understand that you are only talking. तो मैंने ऐसे प्रार्थना की, परमेश्वर तू मुझसे ऐसे बात कर ताकि मैं समझूं कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। Then God came to my level and talked. Then I understood that this is God. फिर It is not परमेश्वर very difficult to मेरे hear God. बराबरी पर आए और उन्होंने मुझसे बातें की, तो मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर है। When God talks to you, He talks to you in your level. जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं तो वो आपके बराबरी पर आकर बातें करते हैं। Okay? So please understand, it is not difficult. So this God comes to us even today तो ये परमेश्वर हमारे पास आज भी आते हैं, to talk to us. हमसे बातचीत To have करने के fellowship लिए, with us. हमसे मिलाप करने के When लिए। we have no fellowship with God, हमारे पास कोई मिलाप नहीं है उनके साथ, we are finished. हम खत्म हो जाते हैं, We are finished. खत्म हो जाते हैं, We can't exist. हम रह नहीं सकेंगे, We cannot know the truth. हमें सत्य जान ही नहीं So पाएंगे। how to have fellowship with? तो कैसे मिलाप करना है परमेश्वर के साथ? This is the secret of life. यही रहस्य है You जीवन violate का। this, you violate your life. अगर आप इसे तोड़ते हो तो अपने जीवन को तोड़ते हो। The first fellowship you have with God is His word. सबसे पहला मिलाप पर परमेश्वर के साथ है उसका वचन। You have to sit and read this word for hours. उसके वचन के साथ बैठना और घंटों तक उसको पढ़ना है। First you buy a table सबसे पहले एक टेबल खरीदे and you buy a Bible और एक बाइबल खरीदे and you put it on the table. और उसे टेबल पे रख दे। You buy one pencil, underline, write on that Bible. एक पेंसिल खरीदे, उस पे निशान बनाए, उस पे लिखे उस बाइबल पर। That should be a Bible table. वैसा आपका बाइबल होना चाहिए। Keep it in a prayer room अपने प्रेयर रूम में उसे रखिए and keep certain other help for this Bible. और जो कुछ हेल्प मदद हो सकती है इस बाइबल के लिए वैसी किताबें रखिए। Unless you know the word, you will not know the truth. जब तक आपको वचन नहीं पता होगा आपको सत्य नहीं जान पाओगे। Many people don't know the truth. बहुत सारे लोग सत्य नहीं जानते। If you have any impossibility, you don't know the truth. अगर आपके जीवन में कुछ असंभव है तो क्योंकि आपको सत्य नहीं पता। If you think this is impossible, it is you don't know the truth. अगर आपको लगता है कि असंभव है क्योंकि आपको सत्य नहीं पता। If you are praying for an iPhone, you don't know the truth. अगर आप एक आईफोन के लिए प्रार्थना कर रहे हो मतलब आपको सत्य नहीं पता। If you really, whatever you want is given to you. जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको दे दिया गया है। If you are jealous, you don't know the truth. अगर आप जलन रखते हो तो आपको सत्य नहीं पता। If you are lying, you don't know the truth. अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको सत्य नहीं पता। If you are robbing, you don't know the truth. अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपको सत्य नहीं पता। We should know the truth. हमें सत्य पता होना चाहिए। We should know the truth. हमें सत्य पता होना चाहिए Truth will set us free. और सत्य हमें स्वतंत्र Truth is करेगा। freedom. सत्य ही स्वतंत्रता है। Many believers don't know the truth. बहुत सारे विश्वासियों को सत्य ही नहीं पता। They have a good heart. उनके पास अच्छा हृदय है They have no truth in them. लेकिन सत्य नहीं है। They believe a lie. वो झूठ पर विश्वास करते हैं There are liars all over. और झूठ बोलने वाले सब जगह है। They tell lies to you. वो झूठ कहेंगे आपको आकर And we believe the lie. Oh, और आप lie is विश्वास करोगे कि झूठ और lie is the झूठ। truth.
ये झूठ ही सत्य है। One of the lie we believe. एक झूठ हम ये विश्वास करते Somebody's हैं prayer is more powerful than my prayer. कि किसी और की प्रार्थना ज्यादा ताकतवर है हमारे प्रार्थना से भी। Huh? Whose prayer? We believe that this man's prayer is more powerful, that man's prayer is more powerful. I'll tell you one thing. Your prayer is more powerful than हम ऐसे anybody's. विश्वास करते हैं कि इस व्यक्ति का प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, उस व्यक्ति का प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि आपकी प्रार्थना सबसे Have you ज्यादा prayed? सामर्थ्य है। क्या आपने प्रार्थना की है? That is the thing. वही Many of us, we don't pray only. हम में से बहुत लोग हम प्रार्थना ही नहीं We करते, don't know to pray. हमें पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करना है, We pray wrong prayers. हम गलत प्रार्थना करते हैं, We don't know how to pray. हमें पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करनी है। Huh? There is one house in my hometown. In that house there is a sister. She is a very godly sister. एक घर है मेरे गांव में, वहां पर एक बहन है, वो परमेश्वर का भय मानती है, ऐसी बहन है। Okay? Very hospitable. Whenever I go, she will say, Pastor, please sit. I will make tea. वो बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी करती है। ऐसे जब no, no. तो पासबान में चाय बनाती हूँ। मैं चाय पीता ही नहीं। ऐसा जो बोल देगा। क्यों मालूम है? वो चाय पिएगा मुझे उल्टी आ जाएगी। क्योंकि उसको चाय बनाना मालूम नहीं। वो बहुत अच्छी सिस्टर है, बहुत होली सिस्टर है, हाँ? बहुत दुआ करने वाला सिस्टर है। पर उधर वो घर में मैं जाएगा, मैं चाय नहीं पिएगा। हाँ? क्यों? बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं, पर चाय मैं उधर पीता नहीं, क्योंकि उनको चाय बनाना आता ही नहीं। हाँ? बहुत लोग को प्रेयर करना नहीं आता है। Yes, sir. प्रेयर करना आता ही नहीं। प्रेयर इज एन आर्ट। प्रार्थना एक कला है, You need to learn it आपको इसे सीखना है so that you can pray well. ताकि आप सही से प्रार्थना कर सके। Prayer is an art. प्रार्थना एक कला है, You can pray. आप प्रार्थना कर सकते हैं। I'll tell you, when you pray, doors open for you. जब आप प्रार्थना करते हो दरवाजे खुलते हैं आपके लिए। Many doors are shut because we have not prayed. बहुत सारे दरवाजे बंद हैं क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। Many doors are shut in the cities because we have not prayed. बहुत सारे दरवाजे शहर में बंद है क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की है। These doors will open ये when दरवाजे we pray. खुलेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। Today many business has not come on you because you have not prayed. आज बहुत सारे व्यापार आपके पास नहीं आए हैं क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की है। Many opportunities have not come because we have not prayed. बहुत सारे मौके नहीं आए हैं क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं की है। I can know everything of the Bible, but the doors will be closed for me. मुझे बाइबल का पूरा ज्ञान हो सकता है लेकिन फिर भी दरवाजे बंद होंगे मेरे लिए। See, I'll tell you, it is not reading the word. देखो ये परमेश्वर वचन पढ़ना नहीं है। When you read the word, it is not just reading, it deposits in your inner man. देखो जब आप इसको वचन पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये आपके अंदरूनी मनुष्य में जाता है। It goes inside your heart. ये आपके हृदय में जाता है। Redesigns your heart. ये आपके हृदय को वापस बनाता That है। is what the word of God will do. ऐसा परमेश्वर का वचन आपको करेगा। Word of God will realign your heart परमेश्वर का वचन आपके हृदय को वापस बनाएगा so that your heart is correct. ताकि आपका हृदय पहले सबसे सही हो जाए। Then from that heart the word will come out. फिर उस हृदय से वचन बाहर आएगा That is confession. और उससे घोषणा कहते See, हैं। word is, many people are reading the word. देखो वचन, बहुत लोग वचन पढ़ रहे हैं। Many people want some healing, so they download some confession, healing confession. देखो बहुत लोगों को चंगाई चाहिए तो वो चंगाई के जो घोषणा है वो डाउनलोड करते हैं। Now, I don't want to comment on this. It is not in your confession. ये आपकी घोषणा में नहीं है। Confession
is part 2. घोषणा ये दूसरा भाग है। Many people don't know this. बहुत लोगों को पता नहीं है। They begin with confession. ये घोषणा से शुरू It is करते part हैं। 2. वो दूसरा भाग है। Part 1. भाग एक। Where is part 1? भाग एक क्या है? Let's turn to Romans 10:9. हम रोमियो उसका 10वां अध्याय 9वां वचन देखेंगे। Let's read this. हम इसे पढ़ेंगे। Romans chapter 10 verse 9 and 10. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू If you confess with your mouth जब आप अपने मुंह से अंगीकार and करते हो believe in your heart. और अपने हृदय में विश्वास करते Okay. Verse 10. हो। 10वां वचन। Verse 10 is right. या। With the heart one believes unto righteousness. क्योंकि हृदय से एक विश्वास करता है धर्मी के लिए, And with the mouth confession is made unto salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। When you read this word, जब हम वचन पढ़ते हैं, your heart gets aligned. हमारा जो हृदय है वो बराबरी में आता है। Then comes the confession. फिर उसके बाद घोषणा आती है। It doesn't start with the confession. ये अंगीकार से शुरू नहीं होता, It starts with your heart. ये आपके हृदय से शुरू होता है। Okay? Always understand. You want healing, you read the word.